बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने डिस्कस करना है, एक स्टेप आगे जाएंगे और हमने आज डिस्कस करना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि एडिशन ऑफ वेक्टर है क्या। तो फॉर एग्जांपल हम पहले बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ नंबर पर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 + 3 = आएगा 5। तो हमारे पास दो नंबर थे 2 और 3 और उनको हमने ऐड किया, रिजल्ट आ गया हमारे पास 5। तो बेसिकली हमने ये एक प्रोसेस बना जिसमें हमने दो नंबर्स को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल नंबर से, और जो सिंगल नंबर है उसका इफेक्ट वही है जो कि इन दो नंबर का कंबाइंड इफेक्ट था। तो नंबर की एडिशन में हम करते क्या हैं कि दो नंबर को या दो से ज्यादा नंबर को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय अ सिंगल नंबर such that that single number have same effect as the combined effect of all those numbers which are to be added. Similarly, in vector additions, it is a process of replacing two or more vectors by a single vector in such a way that that single vector has same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. So क्या है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल वेक्टर के साथ, और वो जो सिंगल वेक्टर है उसका इफेक्ट भी वही होता है जो कि तमाम वेक्टर जिनको हम ऐड कर रहे होते हैं उनका कंबाइन इफेक्ट होता है। तो इट इज of replacing two or more vectors by a single vector in such a way that single vector has same effect as the combined effect of all those vectors which are going to be added. So this is what it is. This is a process in which one can replace two or more vectors by a single vector in such a way that that single vector has same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. So this is a process in which two or more vectors can be replaced by a single vector such that that single vector has same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. How we can add two or more vectors? Next question is how we can add two or more vectors. हमें पता है कि वेक्टर नंबर की तरह नहीं है, नंबर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वहां पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। तो ये नंबर की तरह से ऐड नहीं हो सकते, इनको ऐड किया जा सकता है ज्योमेट्रिकल मेथड से, क्योंकि इनके
पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है. सो दे कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, जो कि ज्योमेट्रिकल रूल्स हैं. ज्योमेट्री के रूल्स के बुनियाद पर इनको एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है. सो वेक्टर कैन बी एडेड, can be added by head to tail rule. So इनको हम ऐड कर सकते हैं by head to tail rule. So what is head to tail rule? पहले सुन लें. जब आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, आप उन्हें ऐड कर रहे होंगे, ऐड करने के लिए यूज करेंगे हेड टू टेल रूल. जब आप हेड टू टेल रूल यूज करेंगे तो करेंगे क्या? फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट करेंगे, सेकंड वेक्टर के हेड को थर्ड वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड सो ऑन. इसी तरह करते जाएंगे. क्या? हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विल बी कनेक्टेड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, head of second vector will be connected with the tail of third vector, and so on. Resultant can be obtained by connecting the tail of first with the head of last. Resultant. And what is resultant vector? A vector which has same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. So resultant vector, यहाँ पे resultant vector की बात आ गई, उसको मैं लिख देता हूँ. What is resultant vector? A vector having same effect is the combined effect of all those vectors which are to be added. This is resultant vector. So what is resultant vector? Resultant vector is a vector which has same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. Like here, 2 plus 3 equal to 5. 5 is the resultant number. And in case of vectors, the resultant vector is a vector which has same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. Now the question is how we can add two or more vectors. Two or more vectors can be added by add to tail rule. The rule is add to tail rule. The question is why vectors cannot be added on the basis of simple arithmetic rules. Why it cannot be added like numbers? The simple answer is vectors के पास दो चीजें होती हैं, नंबर एंड मैग्नीट्यूड. सॉरी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन होने की वजह से मैग्नीट्यूड होता है, सिंपल नंबर होता है, ऐड कर देते हैं. बट यहाँ पे क्या चीज है, या स्केलर क्वांटिटी होती है तब भी सिंपल ऐड कर देते हैं. बट उस केस में सिमिलर क्वांटिटी ऐड होती है. 2 मीटर प्लस 3 मीटर 5 मीटर आंसर आ जाता. लेकिन वेक्टर के केस में डायरेक्शन को भी मद्देनजर रखना है, तो इस वजह से दे कैन नॉट बी एडेड सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स जो के हैं अरिथमेटिक रूल्स हैं, उनकी बेसिस पे हम इनको नहीं ऐड कर सकते. इनको हम ऐड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेड टू टेल रूल. और क्या होगा हेड टू टेल रूल में? क्या होगा मैंने अभी आपको बताया. हेड टू टेल रूल क्या है? हेड टू टेल रूल ये है कि इन केस ऑफ हेड टू टेल रूल हम करते हैं क्या, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विल बी कनेक्टेड विद द टेल ऑफ सेकंड, एंड हेड ऑफ सेकंड विद द टेल ऑफ थर्ड, एंड सो ऑन. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं, ए और बी. ए और बी, देखिए ए के हेड को बी के टेल के साथ कनेक्ट किया,
ए के हेड को बी के टेल के साथ कनेक्ट किया। थर्ड अगर होता सी होता तो बी के हेड को सी के साथ कनेक्ट करते। रिजल्टेंट के लिए रूल क्या है? पहले के टेल को आखिरी के हेड के साथ कनेक्ट करना है। पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ कनेक्ट करना है। तो क्या रूल है जी? रिजल्टेंट के केस में हमने किया क्या, देखिए फिर आपके पास एक वेक्टर था और एक वेक्टर बी था। ए और बी को ऐड करना है, सिंपल एट दिस स्टेप। तो ए के हेड को बी की टेल के साथ कनेक्ट कर दिया और रिजल्टेंट के लिए पहला वेक्टर जो कि है इसके टेल को बी के हेड के साथ कनेक्ट कर दिया। आखिर में जाके हेड टू हेड आपस में मिलेंगे। स्टार्ट में टेल टू टेल आपस में मिलेंगे। रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास? ए प्लस बी। ये रिजल्टेंट है ए प्लस बी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं अगर इनकी ऑर्डर को चेंज कर दूं तो रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा? अगर ऑर्डर को मैं चेंज कर दूं रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले मैं क्या करूं कि पहले मैं बी को ले लूं फिर ए को ले लूं, तो क्या रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा? पहले बी लिया फिर हमने ए लिया, पहुंचे किधर? उधर ही। ए प्लस बी के केस में भी हम वहीं पहुंचते हैं जिस तरह के हम बी प्लस ए के केस में पहुंचते हैं। तो पता चला कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव मीन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5 ऑर्डर चेंज कर लें रिजल्ट सेम रहेगा। तो वेक्टर की एडिशन में भी आपका रिजल्ट सेम रहेगा। वोट एवर बी द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर in order to aid them, the result will remain the same. तो ऑर्डर कोई भी ले लें आप, रिजल्ट सेम रहेगा। तीन वेक्टर्स हुए, a + b + c किया, a + c + b किया, a b + a + c किया। इन ऑल दी थ्री केसेस रिजल्ट जो होगा वो सेम ही होगा। सो अगेन in case of head to tail rule, head of each vector will be connected with the tail of next vector and so on. For resultant, head of or resultant tail of first vector will be connected with the head of last. जब ये कर लेते हैं तो फिर आपने एक्सप्लेनेशन दे देनी है और एक्सप्लेनेशन के लिए आप ऐड करेंगे। मैं बता रहा हूँ पेज, ये आप सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, ऐड करेंगे वेक्टर को, ऐड करेंगे, बल्कि एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए आप पेज 41 और 42 पे जो एग्जांपल सॉल्व हुई है एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, वो आप कर लेंगे। तो उसमें आप देख लें आपके पास कितने वेक्टर दिए गए हैं, ए बी सी डी।
तो ए के हेड को बी के टेल के साथ, बी के हेड को सी के टेल के साथ, सी के हेड को डी के टेल के साथ कनेक्ट किया विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड फाइनली पहले के हेड को फर्स्ट के हेड को आखिरी के टेल के साथ कनेक्ट कर दिया। सो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, ये आपकी असाइनमेंट है। So when you add assignment page 40, 40, 41, 40, 41. So एक बात याद रखनी है, when you add two or more vectors, you cannot change their magnitude and direction. This is simple rule. In order to add two or more vectors, when you add them, you cannot change their magnitude and direction. Magnitude and direction cannot be changed. For example, अगर एक वेक्टर A है वो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ है तो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ही रहेगा एडिशन के केस में। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बट यू कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। देन हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। फिर एक दफ़ा मैं बता दूंगा आपको व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी लिख दी थी। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? So resultant vector is a vector which has same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. Like A and B are two vectors. When these two vectors are added, the resultant is R. R is the resultant vector. अगर हम A और B वाले रास्ते से जाएं, पहले यहाँ से स्टार्ट लें, रेड जो पाथ है, फिर ब्लू पाथ पर जाएं, हम जिस जगह पे एंड करते हैं डायरेक्ट अगर हम ब्लैक पाथ पर जाएं तब भी एंड वहीं पे करेंगे। Resultant vector is a vector which has same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. Resultant vector is a vector which has same effect as the combined effect of all those vectors which are to be added. This is what about the resultant vector. तो once again इस डायग्राम पे गौर करें आप। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए को हमने रेड कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर बी को हमने ब्लू कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम रेड और ब्लू पाथ को फॉलो करें, जहां पर हम पहुंचेंगे, अगर डायरेक्ट हम ब्लैक पाथ फॉलो कर लें तो पहुंचेंगे हम वही। तो पता चला कि रिजल्टेंट वेक्टर इज द वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना कि उन तमाम वेक्टर्स को होगा जिनको हम ऐड कर रहे होंगे। और फिर अभी जो मैंने बताया, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अगेन, what do you mean by vector addition is commutative? Vector addition is commutative. मीन मतलब क्या है? वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? वॉट एवर बी द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स, वॉट एवर बी द ऑर्डर ऑफ वेक्टर, जब आप उन्हें ऐड करते हैं रिजल्ट विल रिमेन द सेम। एवर बी द ऑर्डर of vectors to aid them, result will remain the same. 10 will be same.
इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैं कर भी चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन एक दफा फिर, वट एवर बी द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर, जब आप उन्हें ऐड करेंगे, वट एवर बी देयर ऑर्डर, द रिजल्ट विल बी द सेम। हमारे पास दो वेक्टर्स थे ए एंड बी, ए एंड बी। हमने एड टू टेल रूल अप्लाई किया। फर्स्ट ये रेड पाथ ओ ए, फिर ए सी मीन ए प्लस बी, हमने एंड किया सी पर। अब अगर ये ए तो इसके पैरेलल भी ए होगा। दो वेक्टर इक्वल होते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पे बी होगा। और एक पैरेललोग्राम बनेगी और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा। क्या होगा? सो रिजल्टेंट ओ सी है, जो को ब्लू कलर से दिखाया गया है। रिजल्टेंट चाहे आप बी ब्लैक पाथ से जाएं या आप रेड पाथ को फॉलो करें, इन बोथ केसेस आप पहुंचेंगे कहां पर? एंड आप कहां पे करेंगे? सी पर जाकर एंड आप करेंगे। सो व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ? मैं पैरेललोग्राम लॉ को भी लिख देता हूं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो या क्या? अगर हम दो वेक्टर लाई करें along the adjacent side of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will be their resultant. If two vectors along the adjacent sides of a parallelogram then the diagonal of the parallelogram will be their resultant. अब देखिए जरा, अब ये दो जो वेक्टर थे ए एंड बी, ये लाई कर रहे हैं along the sides of a parallelogram। तो ये ब्लू कलर का जो डायगोनल है, वो पैरेललोग्राम का डायगोनल है। that is the resultant. So if two vectors lies along the adjacent side of parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will be their resultant. So vector addition is commutative. What does it mean? A plus B equal to B plus A. Mean whatever be the order of the vector, in order to whatever be the order of the vector, when they are added together, the result will remain the same. और यहाँ पे हम एंड करेंगे, क्वेश्चन आंसर हो तो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे।